Okay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope the connection is now ready. Okay. Hello friends, this is Dr. Khalid Rahman Hakim from Jeddah, Saudi Arabia. As you know that in the last week it was being told that I shall be live this week for the live session, and the live session will be particularly on different topics, and the topic of my talk shall be particularly on the various opportunities available for the students, particularly the students of Kashmir in Saudi Arabia and as well as in Malaysia. So I shall be switching on different languages, and because I know that this is the thing which we have started. The main aim for this study is and the whole program is to get back to the grassroots level, to contact and to connect between the younger generations, the school going students, the college going students, and the university going scholars, so that they shall get the positions abroad, particularly in those areas in which they are interested. So today, just before starting the actual the topic which we have thought of to start today, I'm still waiting for the friends to contact and connect as soon as possible, so that it shall be a very much live interactive session than a one-way talk. I shall be switching in different issues in between, but before starting, as most of the people knows that I am Khalid Rahman. I am from Islamabad district of Kashmir, and just graduated my PhD in 2011 from Jamia Hamdard. I was doing my masters and PhD there. And after completing my master's and PhD in 2011, I have joined Kashmir University for a very short period of time, 3 to 4 months, the bioresource department. And then I feel that it was not suitable enough to be in the university that time, because of first of all the opportunities available outside. To go outside and to do something. Second, to the desire for the research and achieving something. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala has helped me to go outside, and I found the job in Malaysia first. Then I visited different countries in between. I visited China for some time. I was a visiting scientist in China for some time. Then I was visiting scientist in Turkey. And in between, I have visited other places also, like Singapore, like Sri Lanka, and some other places. Finally, I have joined Saudi Arabia, the King Abdulaziz University, which is having the main campus in Jeddah, Saudi Arabia. And since 2016, I am working here as an associate professor in the Department of Biological Sciences. So I am just giving little bit of my brief so that other people will join. I am looking that 21 people have just joined, and some have say salam. Some Harun Rashid is writing about the PhD in Malaysia. I will definitely come to that topic. मैं ज़रूर इस मौजू पे आऊँगा. सबसे पहले मैं खैर मकदम करता हूँ अपने तमाम अहबाब का, जो लोग मुझे जानते हैं या नहीं जानते हैं, फेसबुक के ज़रिए जानते हैं. बहुत सारे लोग सलाम कह रहे हैं, दुआ कह रहे हैं. हारून रशीद जज़ाए खैर का एफर्ट के बारे में कह रहे हैं. अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर दे. असल में एज अ को फाउंडर ऑफ दिस कश्मीर गाइडेंस ग्रुप, दिस ग्रुप इज़ बेसिकली एन ओपन ग्रुप. ये कोई पॉलिटिकल ग्रुप नहीं है. दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वी ऑर्गेनाइज्ड a sort of. ये some of the like-minded people, they came together and they thought that the basic issue in Kashmir is not the lack of talent. It is not the lack of something which we cannot find the students among the students of Kashmir. Basically, it is a progressive and a selected guidance. जिसको हम कहते हैं हम guidance तो करते हैं. हमारे पास we have the people in Kashmir. They are guiding the people. They are guiding the youth
but the actual thing which we have in our mind, that's we should be very much focused, and our the guidance, the focus of the guidance should be well elaborated, and it should be well connected and well communicated. The lacking of that factor, that we don't have the people, we have the people at the individualistic level, but the people as a group which have the like-minded frequency and they can work for the generations, coming generations. ये सबसे बड़ा हमारा मकसद था कि हम एक साथ जमा हो जाएं, चाहे हम कहीं भी हो, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए एक अच्छा खैर इसमें यह है कि वी कैन ज्वाइन, we can collaborate, we can contact, and we can help our people. And this was the brainchild behind our group, Kashmir Guidance, and it's a group of all people who are watching now, who have been in contact with us, who have given the talk so far, who are willing to join with us, because this is an open group. And for all the people who are now watching, who are offline now, who want to do something, I must tell you that this is the group for all, irrespective of gender, irrespective of religion, irrespective of the ideology. Our main aim is to just bring forth the level of that type of guidance, so that the Kashmiri youth, they shall go to touch the midas and every horizon of the success. So this is our main group, and we have started so far. This group is active now in different at different aspects, particularly in the guidance and others, and on different levels. So मैं थोड़ा सा ज़्यादातर उस ज़बान में बात करूँगा जो हमारी ज़्यादातर जो समझने वाली ज़बान है, और इन बिटवीन में दूसरी लैंग्वेज में भी बात करूँगा. सो इन बिटवीन बिलाल वानी भी हमारे बारे में कुछ कुछ लिखते हैं. बिलाल अहमद वानी साहब, बहुत शुक्रिया. मैं जानता हूँ आपको और बहुत सारे और लोगों को जानता हूँ. जो सलाम कह रहे हैं उनको मैं वालेकुम अस्सलाम कहता हूँ. सब्ज़ार साहब हैं और बहुत सारे साथी और भी बीच में आ रहे हैं, तो सबके सलाम का जवाब तो खैर एक एक करके मुमकिन नहीं है. तो बस मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि हमारी कोशिश ये थी कि हम कुछ एक सीरियस एफ़र्ट करें, जिसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी ज़्यादा मैटर ना करे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो बाहर पढ़ते हैं, काम करते हैं, उनके पास इस चीज़ की कमी नहीं होती है अल्हम्दुलिल्लाह. मगर इस चीज़ की जो कमी है वो ये है कि एक नेटवर्किंग और एक जो ग्रुप बने जो इस लेवल पे काम करें, उसका एक ऐसा राब्ता होना चाहिए कि जो ऑफलाइन एज वेल एज़ ऑनलाइन और जो ऑन स्पॉट भी काम करे. मैं अभी एक एक करके अब सब स्कॉलरशिप पे आ रहा हूँ. मैं थोड़ा सा अपना ध्यान दे रहा हूँ उन साथियों को जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, कि हमने ये ग्रुप इसलिए शुरू किया है कि हम चाहते हैं कि तो कश्मीर गाइडेंस बेसिकली जो 2 साल से काम कर रहा है, वो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वो ऑनलाइन ही काम कर रहा है. बट हमारी ये तवक्का है, पिछले साल भी ये तवक्का थी कि हम समर में आके इसको ऑनलाइन कश्मीर के डिफरेंट लेवल्स पे, यानी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हर एक लेवल पे हम कुछ ना कुछ ऑफलाइन भी काम करें, यानी ऑन स्पॉट काम करें. उसके लिए हम मतलब ओपन कर रहे हैं कि जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स बनना चाहते हैं इस ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा खासा डायस्पोरा है जो पूरे मुल्क में, पूरे मुल्क क्या मैं कहूँ, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जहाँ यूरोप से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, और जहाँ एशिया से लेके अमेरिका तक, उसके बाद न्यूजीलैंड और दूसरे जो ममालिक है यूरोप में, वहाँ से हमारे अफराद, हमारे दोस्त, अहबाब सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, और कुछ चाहते हैं कि हम अपने लोगों का अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ. और उसमें यह है कि हम टारगेट ओरिएंटेड, हमारे एक साथी ने तो यहाँ तक कहा कि हम आपको ज़मीन भी देंगे, हम आपको एरिया भी देंगे श्रीनगर में, जो कि हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा लेवल पे शुरू हो जाए. हम चाहते हैं कि एक टारगेट ओरिएंटेड काम हो जाए, जिसके लिए हम अभी तो ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं. इसके बाद हम ऑफलाइन भी यूनिवर्सिटीज़ टू यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूलों में आके हम इस चीज़ को ज़्यादातर फैलाएँ. और ज़्यादातर वो जो टारगेट ओरिएंटेड गाइडेंस होती है कि आप अपने कोर्स से कंप्लीट होने के बाद, या अगर आप बैचलर लेवल करना चाहते हैं या मास्टर पे आना चाहते हैं, हाउ शुड यू कम आउटसाइड फ्रॉम योर द कंफर्ट जोन, और उसके बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़, क्या क्या स्ट्रगल्स है. सबसे पहले मैं ये बताऊं कि बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत लगती है, और बाहर की दुनिया में बड़े मज़े भी लगते हैं. ऑफलाइन के मुकाबले में जो ऑनलाइन लोग होते हैं वो ज़्यादातर खूबसूरत, और ज़्यादातर उनमें हार्डशिप्स कम लगती हैं, क्योंकि प्रोडक्टिविटी जब हम उनकी देखते हैं तो वो बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा लगता है. बट
मैं आपको ये बताऊं कि जो बाहर निकलने वाले लोग हैं या जो चाहते हैं कि बाहर जॉब करें, उनको एक चीज़ के लिए तैयार रहना है कि वो ये है कि बाहर की दुनिया में आपको कंपटीशन पूरे दुनिया से है। और बट अगर आप उस कंपटीशन में अपने आप को साबित कर पाए तो आपके लिए बड़े अपॉर्चुनिटीज़ है। ये ब्लू ओशन है। इस ब्लू ओशन में आप माशाल्लाह आपके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप खुद कहेंगे कि मैंने बहुत गलती की कि अपने मतलब छोटे से कमरे में या छोटे से जो अपना मैंने काउच बनाया था उसमें रह के मैंने गलतियाँ की है। सो अगर आप उस चैलेंज के लिए तैयार हैं, यानी बाहर में जो टैलेंट है, बाहर में जो चैलेंज है, और जो कि मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि जो हमारे कश्मीरी बच्चे हैं दे हैव टैलेंट, मच मोर टैलेंट, और सिर्फ गाइडेंस की, प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। उस प्रॉपर गाइडेंस के लिए हम जो असल में जो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, यानी जो उस मुल्क में रहते हों या उस मुल्क में जाने से पहले उन्हें क्या स्ट्रगल किया या अभी क्या वो स्ट्रगल कर रहे हैं, इस तमाम चीज़ को हमारे पास एक अच्छा खासा हमारा ग्रुप है जो इस चीज़ के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ के लिए वो काम कर रहे हैं, यानी जो हम जिसको हम कश्मीर गाइडेंस का नाम हमने दिया है। तो कश्मीर गाइडेंस जो है ये बेसिकली आपका अपना ग्रुप है। सबसे पहले मैं इसको थ्रू आउट ओपन करूँगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हम चाहते हैं कि कश्मीर गाइडेंस घर घर पहुँचे, और उसके लिए हमारे पास न सिर्फ कि हमारे पास ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है, हम ऑफलाइन भी यानी लोगों के सामने आके जो डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ है उसमें इसको फैलाए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स चाहिए। हमें जितने भी कश्मीर या जम्मू में जो भी हमारे पास या लद्दाख में डिस्ट्रिक्ट्स है, अगर कोई वॉलंटियर जॉब है ये, क्योंकि हम इसमें कोई चार्ज नहीं करते हैं, किसी को कुछ नहीं दे सकते, TADA भी हम अपनी जेब से ही करते हैं। तो खैर हम बाहर के लोग हैं तो हम थोड़ा सा कुछ इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम किसी से कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ ये कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सपोज़ अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन हो, या जैसे हम तो दुनिया के दूसरे ममालिक में हैं, अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में कोई हेड बने, हमारा कोऑर्डिनेटर बने, तो जो भी फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम होगा हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी लेवल पे, या उससे बाहर भी हम कहीं ग्रुप में बैठ के डिफरेंट इंफॉर्मेशन शेयर करें या गाइडेंस दें या उनको प्रिपेयर करें या मैनेजमेंट की क्लासेस दें कि कैसे इसको मैनेज किया जाता है, बाहर आने के लिए क्या क्या तरीके हैं। अगर इन चीज़ों को हम प्रॉपरली मैनेज कर पाए तो ये सबसे बड़ा सदका जारिया उन लोगों के लिए होगा जो इसमें हमारा हाथ बटाते हैं। तो ये बात सबसे बड़ी बात है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो मेहरबानी करके इसको एज ए सीरियसली ले लें। जो लोग हमें चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर्स बने, एक लिस्ट हम बनाएंगे। हम अभी एक वेबसाइट भी लॉन्च कर रहे हैं। उस वेबसाइट में हम ये चाहते हैं कि हम वो लोग जो मतलब इसमें हमारा हाथ बटाने वाले हैं या चाहते हैं कि हमारा हाथ बटे, उन लोगों से मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो आगे आ जाए, अपना नाम दें, और फिर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनको साथ मिलके, ये सबका ग्रुप है, किसी एक बंदे का ग्रुप नहीं है, किसी एक इंडिविजुअल का ग्रुप नहीं है, इसमें सब लोग शामिल हैं। कश्मीर के जितने भी लोग हैं, जो बाहर है, जो अंदर है, सब की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसमें शामिल हो जाए। इसके बाद दूसरी बात जो ये है कि वी आर गोइंग टू लॉन्च सून आवर यूट्यूब। अच्छा, इंशाल्लाह इसके बाद हमारा जो दूसरा तरीक़ा है वो ये है कि हम यूट्यूब चैनल को हम शुरू करेंगे। यूट्यूब चैनल में हमारे जो एक्सपर्ट होंगे उनके सामने जो टॉपिक दिया जाएगा, वो मैंने पहले ही कहा कि एक छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक, यानी कैसे हम स्टूडेंट्स को तैयार कर लें, किस तरह वो तैयार हो जाए ताकि वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे इंग्लिश लेवल एग्ज़ाम हो, चाहे दूसरे एग्ज़ाम्स हो, वो कैसे इसमें अपने लिए बेहतरी हासिल करें और उसके लिए तैयार हो जाए। ये हमारा दूसरा एम है इस चीज़ को शुरू करने का। इसके अलावा अभी हमारे पास जून में या समर में जो हमारी मुख्तलिफ जो अफराद है मुख्तलिफ जगहों पे उनकी जो छुट्टी होने वाली है, तो उसमें वो चाह रहे हैं कि वैकेशन में दे शुड कम एंड दे शुड गिव देयर लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, और कोऑर्डिनेशन के साथ साथ मेंटरशिप का प्रोग्राम भी हम शुरू कर रहे हैं ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे। तो इसलिए जितने भी लोग हमारे जो फ्रेंड सर्कल है यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में, they can come in contact, they can be the coordinators there in the universities and colleges, so that our friends from different parts of the globe, they shall come and they shall motivate the youth। और साथ साथ में वो इसका इन्हें वो कोर्सेज़ जो होते हैं या जो गाइडेंस के क्लासेस हैं, वो कोर्सेज़ और वो गाइडेंस के क्लासेस आपके सामने दे दें।
सो कुछ लोग अभी इस बारे में, जैसे बिलाल साहब है, ऐसे ही हमारे पास उमर बिन इब्राहिम है, तो ये कुछ हमें सजेस्ट कर रहे हैं। मैं उन सजेशंस को पढ़ूंगा, एक एक करके आपका आंसर भी दूंगा। और पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हमारे लुधियाना में सलीम जहांगीर साहब है। सो ये भी कुछ हमारे लिए कह रहे हैं कि ये भी कह रहे हैं कि हम भी कोशिश करना चाह रहे हैं जिस तरह की आपकी कोशिश है। नेचुरली ये सब हम सब की कोशिश है, हम सब को एक साथ काम करना है और इंशाल्लाह इस काम को हमें आगे बढ़ाना है। सो कश्मीर गाइडेंस ने अभी तक इन्हें अभी तक जो हमारा जो पहला सीज़न था लेक्चर्स का, ऑनलाइन लेक्चर्स, जिसमें हमने कोशिश की थी कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब से जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स दे शैल प्रोवाइड सम गाइडिंग लेक्चर्स। एंड इसमें अभी तक 8 लेक्चर्स हुए और अभी हमारे पास एक लिस्ट है, फुल लिस्ट है, जिसमें वी आर नाउ गोइंग टू टेक दोज पीपल हु आर एक्सपर्ट इन अदर सब्जेक्ट्स अदर देन द साइंस सब्जेक्ट्स, उनमें वो शामिल हो जाए। क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी कहते हैं कि हमारा बैकग्राउंड साइंस नहीं है। अक्सर आप साइंस के बारे में बात करते हैं, किसी का कॉमर्स में है, किसी का पॉलिटिकल साइंस में है, किसी का और सब्जेक्ट्स में है। तो नेचुरली ये सिर्फ जो हम गाइडेंस की बात करते हैं, ये सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए ये किसी जगह इसके लिए नहीं है, बल्कि ये सब सब्जेक्ट्स जो है, सब सब्जेक्ट्स इसमें मुतय्यन हो जाते हैं। सब सब्जेक्ट्स के बारे में हम बात कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द अनदर थिंग कि हमने इस बार वो एक्सपर्ट्स भी चुने हैं। दोज एक्सपर्ट्स आर फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडी। दे विल कम एंड दे विल इंशाअल्लाह अज़ीज़ प्रोवाइड द देयर एक्सपर्ट ओपिनियंस ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जिसमें बड़े लैंग्वेजेस भी हैं। हम एक एक करके कोशिश करेंगे कि सबको आपके सामने लाएं। बट सबसे बड़ा जो हमारा ये मिशन इस वक्त है, द मेन मिशन विथ अस बिफोर अस इज़ दैट वी हैव टू नाउ स्टार्ट दिस थिंग ऑन ग्राउंड ऑल्सो। उसके लिए हमें एक्सपर्ट चाहिए। और मैं फिर से एक बार, क्योंकि बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था, अपने साथियों से कहूँ कि वो सामने आ जाए और डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन में हमारी मदद करे, ताकि जो समर से हमारे लोग वैकेशन पे जा रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब, वो अपने कश्मीर में जाके वो उस टाइम को यूटिलाइज़ करें, चाहे गाइड करें, चाहे अपने अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएं, चाहे उस मुल्क में जिस मुल्क में उनको वो अपना काम कर रहे हैं उसके बारे में बताएं कि क्या चल रहा है, कैसे वो इसमें पार्ट ऑफ हो सकते हैं। Okay, now I think this was the introductory part. I will not take much time. Still, I am waiting for the people who are outside. They should come. You can also tag them so that they can ask the questions, and this should be the interactive session as I told you. So first of all, let me tell you that today's talk, it shall be specially based on the opportunities and possibilities of PhD, masters and bachelor level at Malaysia, in Malaysia. So जब हम बात करते हैं मलेशिया की, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं जो पहले मलेशिया में रह चुके हैं। मैंने भी 4 साल अभी अपने कैरियर के गुजारे हैं मलेशिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज पर द कंट्री इज़ कंसर्न, मलेशिया दुनिया की उन ख़ास ममालिक में से एक मुल्क है जो बहुत ही हर चीज़ में प्रोग्रेसिव थाट रखता है। वहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट भी सूटेबल है, वहाँ के जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी हाई क्लास है, और वहाँ का जो जो दूसरे हिसाब से जो दुनिया भर में आप देखते हैं अफरा तफरी और पीसफुल माहौल नहीं है। मलेशिया उस हिसाब से डिफ़र है, क्योंकि उसमें एनवायरनमेंट का भी अच्छा फैक्टर है, वहाँ पॉलिटिकल सिचुएशंस भी ठीक है, वहाँ एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़े हद तक है। इनफैक्ट आजकल वो चाह रहे हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया को, जो क्योंकि उस एरिया में पॉलिटिकल या एजुकेशनल हब बन रहा है, उसके ये चैलेंज दे और एजुकेशनल हब के साथ साथ मलेशिया प्रोग्रेसिव लेवल में इस स्टेज में काम कर रहा है। क्योंकि वर्ल्ड लेवल में एक जो यूनिवर्सिटी पैटर्न पे एक वर्ल्ड लेवल में एक रैंकिंग होती है जिसको हम QS रैंकिंग कहते हैं। डिफरेंट अलग अलग रैंकिंग है, बट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रैंकिंग इज QS रैंकिंग। उसमें अगर आप देखेंगे तो यूनिवर्सिटीज़ जो मलेशिया की है, वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो सबसे नीचे भी है, जैसे यूनिवर्सिटी मलाया है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ 100 या 200 के बीच में है, या विद इन 300 मलेशिया की मेन यूनिवर्सिटीज़ है। तो जो कि एक अच्छा एक मकाम रखता है कि हज़ारों यूनिवर्सिटीज़ जो दुनिया में हैं उनमें मलेशिया 200 या 300 उस ग्रेड में यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, जो कि एक बहुत अच्छा मकाम
माना जाता है कि अगर कोई इंसान इन सब्जेक्ट्स में शामिल हो जाए, उन यूनिवर्सिटीज़ में शामिल हो जाए, नेचुरली जो उनकी रैंकिंग होती है, जो रैंकिंग का लेवल होता है, वो रैंकिंग का लेवल इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पर एजुकेशनल एक्सेलेंस कैसा है, वहाँ लोग कैसे काम करते हैं, वहाँ से पेपर पब्लिकेशंस और बुक पब्लिकेशंस, इसी तरह और भी चीज़ें क्या है, वहाँ पर स्टूडेंट एक्टिविटीज़ कैसे हो जाती हैं। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तो एक मलेशिया भी एक रिकमेंडेड प्लेस है। अगर आप बैचलर से मास्टर या पीएचडी या पोस्ट डॉक्टरेट करना चाह रहे हैं तो मलेशिया एक रिकमेंडेड प्लेस है, क्योंकि मैं वहाँ रह चुका हूँ 4 साल, मैंने वहाँ काम किया है, मैं वहाँ के लोगों में रहा हूँ, वहाँ के लैंग्वेज से लेके वहाँ से वो जो वहाँ के हैबिट्स है और उसके बाद एजुकेशनल। सो बिग थम्स अप फॉर द मलेशियन सिस्टम। इफ़ यू वांट टू गो टू मलेशिया फॉर योर मास्टर्स, पीएचडी एंड पोस्ट डॉक्टरेट, मलेशिया इज़ द बेस्ट चॉइस। सो आप ऑप्ट कर सकते हैं मलेशिया। जहाँ तक ताल्लुक़ है आउटसाइड एजुकेशन का या आउटसाइड जाने का, सबसे पहले हम एजुकेशन की बात करेंगे तो मेरी तरफ से ये रेकमेंडेड नहीं है कि कोई अपने स्कॉलरशिप के बगैर, यानी अपने खर्चे पे कोई बाहर जाए। सो व्हाट आई रेकमेंड इज़ दैट कि अगर आप किसी भी जगह जाने का इरादा रखते हैं, चाहे मलेशिया हो, चाहे सिंगापुर हो, यानी या चाइना हो, ये तो एशिया की बात हुई, या यूरोप में जाना चाहते हैं या यूएस में जाना चाहते हैं, सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट what I recommend is that you should not go to these countries for pursuing the education on your own cost. ये सबसे बड़ी मैं अपने हिसाब से मानता हूँ कि क्योंकि ख़र्चा बहुत ज़्यादा आएगा। क्योंकि देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं कि आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं अपने पैसे से। फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ना, उसमें कोई चीज़ हासिल करना, इसका वैल्यू तब है, ये तब यानी इसका वैल्यू बन जाता है या आपके कैरियर में तब एड ऑन हो जाता है जब आपने कोई स्कॉलरशिप अर्न की हो। और जब हम स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो स्कॉलरशिप की कमी किसी भी जगह नहीं होती। प्रॉब्लम यह है कि जो हमारे लोगों में बदकिस्मती के साथ, इसको मैं मतलब पिछले लेक्चर में मैंने कहा था, इसको अभी मैं इसको आप एडमिट करता हूँ और आपको भी शायद एडमिट करना पड़ेगा कि वी आर हैविंग द लैकडायसिकल अप्रोच। यानी वही ना कि सुस्ती का तरीका, आपने लिंक भेजी, ठीक है, लिंक खोले बगैर सर इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, सर वो क्या होता है, सर ये क्या होता है। ये जो इस तरह का जो अप्रोच हमारे पास है बदकिस्मती के साथ, इस अप्रोच को यानी ये एक नेगेटिव अप्रोच है, ठीक है। इस अप्रोच को हमें छोड़ना है। जहाँ तक मीडियम ऑफ टीचिंग मलेशिया के बारे में है कि वहाँ मीडियम क्या है टीचिंग का, तो मीडियम ऑफ टीचिंग वहाँ पर इंग्लिश है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वो इंग्लिश है, खुसूसन यूनिवर्सिटी लेवल में। वहाँ जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, चाहे रिसर्च में या चाहे मास्टर, इंग्लिश है। और इंग्लिश वो अच्छा खासा बोलते हैं, लोग भी वहाँ बोलते हैं। हालांकि जो पीएचडी वहाँ करना चाहते हैं उसको कुछ टाइम तक उसको मले का लैंग्वेज, वो भाषा मलायू कहलाते हैं उसको, तो उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा 5-6 महीने। बट आप बिलीव कीजिए कि दुनिया की सबसे आसान लैंग्वेजेस में एक लैंग्वेज उनकी लैंग्वेज है जिसको हम भाषा मलायू कहते हैं। बिल्कुल आसान, उसको डिफरेंट, इन्हें आप कहेंगे उर्दू, हिंदी, अरबिक और थोड़ा इंग्लिश मिक्सचर हुआ है, और बहुत ही 3-4 महीने में आप ज़बान सीख सकते हैं। बट ज़बान सीखे बगैर भी आप वहाँ पर एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ की नॉर्मल लैंग्वेज जो है खुसूसन फॉरेनर्स के लिए वो इंग्लिश है। बट अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं पोस्ट डॉक्टरेट के लिए तो वो तो कोई मसला ही नहीं रहेगा। मगर अगर आप मास्टर या पीएचडी लेवल पे जाना चाह रहे हैं तो फिर आपको एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है जो आईलेट्स कहलाता है। टॉफिल भी होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वो आईलेट्स को ही मानते हैं, जिसके बारे में भी मैं बात करूँगा। ये सवाल आया था हारून रशीद साहब की तरफ से, तो वहाँ जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज ही है। इसी तरह बीच बीच में सवाल पूछते रहें, मैं नज़र रख रहा हूँ आपके सवालात पे। तो इसी तरह जो शौकत साहब है, मोहम्मद शौकत, वो लिख रहे हैं कि मैं प्लांट साइंस से हूँ और कोई एक्सप्लोर कीजिए अपॉर्चुनिटी पीएचडी प्रोग्राम का। शौकत साहब को मैं बताऊँ कि मैं भी प्लांट साइंस का हूँ। तो देखिए, सब्जेक्ट वाइज अगर आप बात करें, सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है या कम है, तो मेरे हिसाब से हर एक सब्जेक्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर एक सब्जेक्ट में अपॉर्चुनिटीज़ है और हर एक सब्जेक्ट में चैलेंजेस हैं। यानी आप ये कहेंगे कि चैलेंजेस नहीं है या सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ कम है, नहीं है, हर जगह है। और प्लांट साइंस में तो मलेशिया बिल्कुल आगे हैं। वजह यह है क्योंकि वहाँ का जो इकोनॉमी का सबसे बेस्ट सोर्स है वो वहाँ की फॉरेस्ट्री है, और फॉरेस्ट्री प्लांट साइंस से रिलेटेड है। अगर आप प्लांट साइंस में हैं और किस लेवल का काम आप करते हैं,
क्योंकि आजकल जो काम का ट्रेंड चल रहा है वर्ल्ड वाइड वो मॉलिक्यूलर लेवल पे है, या जो आप मतलब बेसिक साइंस भी अगर आप करना चाहते हैं तो उस बेसिक साइंस को आप कैसे एक्सप्लोर करें, आपका जो प्रोजेक्ट है वो कैसे आप उसको इंट्रोड्यूस करें अपने प्रोफेसर के सामने, उसके बारे में बात करूंगा। वो मैं दिमाग में रख रहा हूँ बात। बट सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि आप अगर कोई भी सब्जेक्ट के मतलब एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, किसी भी चीज़ में आप आगे आना चाहते हैं, जैसे अपॉर्चुनिटीज़ क्या है कश्मीरी टेक्निकल स्टूडेंट्स के, बहुत है टेक्निकल। देखिए वसीम साहब, मैं आपको बताऊं, टेक्निकल एजुकेशन ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरे दुनिया में, मलेशिया छोड़िए, पूरे दुनिया में आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि टेक्निकल पर्सन वो होता है जो कभी भी मतलब जिसकी जो अपॉर्चुनिटी है ना वो कभी भी मिस नहीं होती है, वो टेक्निकल पर्सन है, क्योंकि उसके हाथ में ऐसा स्किल है। बट मसला ये है कि आपको पता होना चाहिए कि वो स्किल कहाँ पर यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है और किस मुल्क में उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो अगर आप कहेंगे कि टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए इंडिया या अब्रॉड में क्या है, मेरे हिसाब से जो हम जैसे नॉन टेक्निकल लोगों के जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसके मुकाबले में टेक्निकल स्टूडेंट्स के अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाते हैं। बट प्रोसीजर क्या है, पाथवेज क्या है, देखिए यहाँ हम चकरा जाते हैं। असल मकसद एजुकेशन या डिग्री क्या नहीं है, मसला है कि हमने कैसे अप्रोच किया है, हमारा अप्रोच क्या है, हम कैसे अप्रोच करते हैं। मुझे याद है कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है और माशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप हासिल भी की है और बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे लेवल पे भी अब आ गए। उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरा हाथ सिर्फ उनके उस मोरल को या उनका जो पाथवे है उस पाथवे को बस बताना, कैसे आप पाथवे को आगे जा सकते हैं, कैसे अपने मोरल को आप हमेशा ओपन रख सकते हैं और कैसे एक मतलब हर दिन सीखने का जो जज्बा है आपके अंदर उसको कैसे आप मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि रोशन रख सकते हैं। क्या होता है कि जब आप अप्लाई कर लेते हैं 4 जगह 5 जगह आपका रिजेक्शन आ जाता है तो आपका मोरल डाउन हो जाता है। या मान लीजिए आपका सब्जेक्ट, जैसे इन साथी ने कहा कि प्लांट साइंस है, आप बिल्कुल मतलब कहते हैं कि सब्जेक्ट शायद उसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ऐसा नहीं है, आप इसको दिमाग से निकालिए। हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस है, बस आपका अप्रोच क्या है, कैसे आप करते हैं। और जो लैकाडेसिकल अप्रोच है, इन्हें एक ऐसा अप्रोच कि भाई हमारा तो होगा नहीं या कैसे करें, छोड़ो यार ऐसा क्या है, इस चीज़ को हमें छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, ये साथ में मशीरुल हक साथी कह रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है समर रिसर्च प्रोग्राम्स का ड्यूरिंग अंडर ग्रेजुएट। मैं तो मानता हूँ कि इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर आप फॉरेन रिसर्च में आना चाहते हैं, अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में आना चाहते हैं, वहाँ देखें कुछ चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये तो ठीक है कि आपके ग्रेजुएशन में आपके पॉइंट्स कितने थे या मार्क्स कितने थे, दैट्स वन ऑफ द पॉइंट। बट वहाँ पर जैसे हमारे ना इंडिया में या कश्मीर में जैसे हालात ऐसे होते हैं ना कि बस आपके सिर्फ पॉइंट्स देखे जाते हैं, आपने क्या किया। फॉरेन कंट्रीज़ में इन चीज़ों की सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है। फॉरेन कंट्रीज़ में इस चीज़ की इंपॉर्टेंस है कि आपने अपने अंडर ग्रेजुएट में समर कोर्सेज क्या किए हैं, आपको वो शॉर्ट टॉपिक क्या था, उस शॉर्ट टॉपिक में आपने काम कैसे किया है, और उसके बाद उस टॉपिक को में आपने कुछ मतलब कोई टेक्निक अगर सीख ली है, तो इनकी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आपके पास टाइम है, और ये अच्छा ट्रेंड है, इसके बारे में एक और लेक्चर हम देंगे कि जो ये ट्रेनीज़ है थ्रू आउट द वर्ल्ड, उनमें स्कॉलरशिप्स भी मिल जाती हैं अलग अलग लेवल पे, अलग अलग कंट्रीज़ में। और मैं तो मानता हूं कि अगर आपके पास टाइम है, जस्ट आपके बीच में छुट्टी के बीच में टाइम मिलता है, तो समर कोर्सेज़ करने चाहिए। बट वो देखना चाहिए कि समर कोर्सेज़ किस लेवल पे कोई टेक्निक आप सीख रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ जब आप सीखते हैं ये आपके सीवी में एड ऑन होता है। और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे तो नेचुरली पता है कि हमारे पास पेपर वगैरह नहीं होगा, रिसर्च कम होगी। बट जो मेन अप्रोच है, आपने समर ट्रेनिंग में क्या किया है, क्या क्या टेक्निक आप जानते हैं। हालांकि अगर आप जो साइंटिफिक टेक्निक ना भी जाने तो मैथमेटिकल टेक्निक्स है, जैसे स्टैटिस्टिकल टूल्स है, या ऐसी ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जानना बहुत ज़रूरी है। अगर उन चीज़ों को आप हासिल करें तो काफ़ी फ़ायदा होगा। अच्छा, इसी तरह बीएससी मैं अभी बता रहा हूँ उसके बारे में। तो मलेशिया की जो बात करते हैं, वी हैव इन मलेशिया 2 टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़। हमारे पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी है। इससे पहले कि मैं इनमें आ जाऊँ, मैं आपको बताऊँ मलेशिया जो है इट्स डिवाइड इंटू 2 पार्ट्स। उसमें जो मेजॉरिटी पार्ट है जिसको हम पेनिनसुलर मलेशिया कहते हैं, उसके साथ साथ हमारे पास मलेशिया में 2 आइलैंड्स है। जो बोर्नियो आइलैंड का पार्ट है उसको हम कहते हैं सबा एंड सरावाक। वो 2 आइलैंड्स है मलेशिया में, जो इंडिजिनस लोग हैं ज़्यादातर वही रहते हैं। मगर जो मेन पार्ट है जिसको हम पेनिनसुलर मलेशिया कहते हैं, उसमें अगर आप देखें तो अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज़ हैं। मलेशिया की 5 मेजर जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, जिसमें यूनिवर्सिटी मलाया,
विद इन 100 रेंज में आती है और काफ़ी ज़्यादा उसका वैल्यू है। और कोलालमपुर में यूनिवर्सिटी है, उसके बाद यूनिवर्सिटी पुत्रा मलेशिया है जिसमें मैंने काम किया है 4 साल। इसी तरह यूनिवर्सिटी साइंस मलेशिया पिनांग में इसका मेन कैंपस है, दूसरे स्टेट में उसका दूसरा कैंपस है। इसी तरह हमारी यूनिवर्सिटी का भी दूसरा कैंपस वहाँ था। इसी तरह इसके अलावा यूनिवर्सिटी जो है जिसको हम यूएम हो गया, यूटीपी यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है जिसको हम जो यूआईटीएम जिसको हम कहते हैं, यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी मारा जो कहते हैं। इसी तरह कुछ यूनिवर्सिटीज़ है, एक यूनिवर्सिटी जौहर बारू में है और इसी तरह बहुत सारी अलग अलग इलाक़ों में यूनिवर्सिटीज़ है जिनकी रैंकिंग है जो क्यूएस रैंकिंग में आते हैं। और इसके अलावा जो मेन यूनिवर्सिटीज़ के अलावा जो वहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी अच्छे खासे हैं, जैसे सनवे ग्रुप ने वहाँ यूनिवर्सिटी बनाई है, टेलर ग्रुप ने वहाँ यूनिवर्सिटी बनाई है। इसी तरह इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, हालांकि वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो उनके इसमें है कोलालमपुर में भी वो भी है, उसका नाम है IIUM इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया। उसमें अक्सर कश्मीरी बच्चे आते हैं क्योंकि वो अच्छा खासा स्कॉलरशिप देते हैं। और इस चीज़ में मलेशिया जो है मतलब आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी जिसमें बोथ यानी गवर्नमेंट एज वेल एज़ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वहाँ अच्छी खासी है। जहाँ तक ताल्लुक़ है वहाँ पे कोर्सेज़ का, सब्जेक्ट्स का, तो मैं आपको बताऊँ मलेशिया में कोई भी दुनिया का शायद ऐसा कोर्स या सब्जेक्ट हो जो वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में न पढ़ाया जाता हो, बल्कि ऐसे ब्रांचेस भी हैं सब्जेक्ट्स के जो हमेशा आप मलेशिया में पाएंगे। ठीक है। इसी तरह ये भी एक बात है कि चूँकि ये मुस्लिम कंट्री है मलेशिया, तो मुसलमानों के लिए, ख़ुसूसन मुसलमान लड़कियों के लिए मलेशिया इज़ ए सेफ़ कंट्री। अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं या आप कोर्सेज़ करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो यू कैन फाइंड देयर द पोजीशन। उसमें कोई मसला नहीं है। ख़ुसूसन जो हलाल इशू है वो भी कोई मसला नहीं है। यू कैन फाइंड एवरीथिंग हलाल मोस्ट ऑफ द केसेस क्योंकि वहाँ रिकमेंडेड है कि आपके खाने पीने की चीज़ों में हलाल वगैरह होना चाहिए। इसी तरह मुस्लिम कंट्रीज़ में ये वसीम साहब लिखते हैं कि आप डिटेल्स बताएं। हम कोशिश कर रहे हैं न सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज़, जो भी न्यूट्रल कंट्रीज़ है वर्ल्ड में, उनके बारे में हम आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में बताएंगे। हम कॉन्टैक्ट हमारे हैं हर एक। हम चाहते हैं कि जो शख्स जिस यूनिवर्सिटी में या जिस मुल्क में काम कर रहा हो वही ज़्यादातर लेक्चर दे, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि जो वहाँ के हालात और वहाँ के जो तरीके हैं वो ज़्यादा वही बताते हैं, वो हम आपके सामने लाएंगे। तो जहाँ तक बात थी कि सब्जेक्ट्स की, तो मैंने आपको बताया हर एक सब्जेक्ट वहाँ है। इंजीनियरिंग में हर एक सब्जेक्ट है, साइंस में हर एक सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटेरियन में हर एक सब्जेक्ट है। कुछ सब्जेक्ट्स है जिनका इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू है, जैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये सब्जेक्ट्स वहाँ हैं। और एरोनॉटिक्स में काफ़ी ज़्यादा वहाँ यानी सब्जेक्ट्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियर साइंस में है, और जहाँ पर ताल्लुक़ है फ़िज़िक्स का, कुछ साथी लिखते हैं सिविल PhD इंजीनियरिंग अब्रॉड, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। इसी तरह फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ फ़िज़िक्स, यानी कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो मलेशिया में पाया ना जाता हो, बल्कि कुछ सब्जेक्ट्स तो ऐसे थे जो मैंने दूसरे मुल्कों में नहीं देखे, वहाँ देखे हैं। तो हम इंशाल्लाह मैं आपको कुछ टाइम के बाद पूरे लिंक्स प्रोवाइड करूँगा कश्मीर गाइडेंस पेज पे, जो मलेशिया के डिफरेंट यूनिवर्सिटी के बारे में हो। और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि वहाँ क्या क्या कोर्सेज़ हैं, एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, वो हम आपको बता देंगे। पर जहाँ तक ताल्लुक़ है कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में कोई भी एजुकेशन हासिल करना, तो मैंने आपको बताया जब तक स्कॉलरशिप ना हो तो मेरा वोट नहीं है कि आप वहाँ जाके एजुकेशन हासिल करें। जब तक स्कॉलरशिप ना हो तो स्कॉलरशिप इज़ अ मस्ट। विदाउट स्कॉलरशिप आई डोंट प्रेफर यू शुड गो आउटसाइड। तो स्कॉलरशिप इज़ अ मस्ट। तो स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, हमारे पास दो तरह से स्कॉलरशिप्स वहाँ पर अवेलेबल है। एक तो है कि जो जनरल स्कॉलरशिप है, एक मलेशिया में स्कॉलरशिप है जो मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप या MIS के नाम से जाना जाता है। तो उसको हम उसके बारे में एक पूरे डिटेल लिंक आपको प्रोवाइड करेंगे, उसमें क्या एलिजिबिलिटीज़ है। इनफैक्ट मेरे छोटे भाई ने वो क्वालिफाई किया है 2-4 साल पहले, उसका कंप्लीट भी हुआ है। और एक प्रेस्टिजियस फेलोशिप है जिसको हम डिटेल्स के साथ आपके सामने बयान करेंगे, उसमें लिंक्स देंगे। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप क्या है। इसी तरह कॉमनवेल्थ जो स्कॉलरशिप है वो भी मलेशिया जैसी कंट्री के लिए ऑप्ट हो सकती है। आप कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप को गूगल में ट्राई कीजिए, आपको एक लिंक मिलेगा। हम भी आपको डिटेल्स के साथ मलेशियन अपॉर्चुनिटीज़ के सामने एक पोस्ट करेंगे, जिसमें मैं जो आपको लिंक्स बता रहा हूँ वो डिटेल्स उसमें होंगी।
इसके अलावा टवास फेलोशिप होती है, थर्ड वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ साइंस, जो कि साइंस बच्चों के लिए कुछ जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है उसमें स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये स्कॉलरशिप्स जो है ये थर्ड वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ साइंस, इसका डेट होता है। अगर आप गूगल में टवास डालेंगे TWAS, आप देखेंगे कि किस किस कंट्री में और इंडिया जैसी कंट्री में टवास के बच्चे मतलब अप्लाई हो सकते हैं और फिर उन जगहों पे वो रिसर्च या अपनी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, स्कॉलरशिप मिल जाती है। और इस तरह के स्कॉलरशिप्स हासिल करने से फ़ायदा ये है कि आपका एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलता है, आपका CV बड़ा मजबूत हो जाता है। सिर्फ बाहर पढ़ना वैल्यू नहीं रखता, बाहर पढ़ने के जो चैलेंजेस है ना, उसमें एक चैलेंज है कि आप कैसे अपने आप को सस्टेन कर पाए, क्योंकि घर से पैसा आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो यू शुड गो देयर, बट यू शुड टेक द स्कॉलरशिप फ्रॉम द गवर्नमेंट, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये तो हो गया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। इसके अलावा प्राइवेट स्कॉलरशिप्स भी होते हैं, जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप मिल जाती है, कुछ तो 100% देते हैं, कुछ 50% देते हैं। और थर्ड ऑप्शन जो है स्कॉलरशिप का वो ये है कि आप डायरेक्टली कांटेक्ट करें प्रोफेसर को, क्योंकि वहाँ पर जब मैं था तो हमें प्रोजेक्ट्स मिलते थे और प्रोजेक्ट्स में हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम इस प्रोजेक्ट में किसी को भी, पहले तो ये सिर्फ मलेशियन को था, अब उनने इसको ओपन कर दिया, किसी भी फॉरेनर को आप इसमें लेके आप उसको अपने प्रोजेक्ट से फेलोशिप दे सकते हैं 3 साल 4 साल के लिए, या मास्टर में हो तो 2 साल के लिए। बट ये डिपेंड करता है, ये काफ़ी ज़्यादा इन्हें चैलेंजिंग, आप अंदाज़ा करें वो अपने सिटीज़न को छोड़ के आपको फेलोशिप क्यों दे। तो इसकी वजह ये है कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको डिटेल के साथ बयान करना। मुझे याद है एक स्टूडेंट बार बार मुझे मतलब मेल मतलब आता था उस स्टूडेंट की तरफ से कि सर आप मुझे वो बताइए, उस प्रोफेसर ने ओके किया, इसने नहीं किया। तो उस स्टूडेंट का मेरा हमेशा यही जवाब होता था कि आप कंटिन्यू करें, और आपका जो लेटर ऑफ जो आप लेटर में आप जो लिखते हैं उसके बारे में आपको मतलब क्या लिखेंगे लेटर में, या ज़्यादातर वो जो प्रोफेसर है वो आपसे पूछेंगे कि आपके पास क्या प्रोजेक्ट है। सो प्रोजेक्ट क्या होगा, प्रोजेक्ट की लेवल क्या होगी, प्रोजेक्ट में आप लिखते क्या हैं, आपकी लैंग्वेज क्या है लिखने का, ये चीज़ें सीखना पड़ेगा आपको। और ये चीज़ें हम इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे, सिखा भी रहे हैं। इसके लिए हम अलग से कोर्सेज़ कर रहे हैं और कोशिश करेंगे ऑनलाइन के अलावा। हम जब कश्मीर में आए हमारे साथी, हम कुछ इस बार कुछ कॉलेजेस को फोकस करेंगे जिसमें हम आपको आईलेट्स और GRE और इस तरह के लेटर लिखने के बारे में इंशाल्लाह बताएंगे, हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। इसके साथ साथ आपका CV बड़ा मैटर करता है, CV आपने कैसा लिखा, और कोशिश कीजिए कि CV में कुछ नया लाएं। इन्फोग्राफिक एक नया एक टेक्निक है, और मुझे याद है कि कुछ साल पहले हमारे एक साथी हैं डॉक्टर शबीर हार्वर्ड से, उन्होंने भी इसके बारे में बात की थी और मैं उसको अच्छा मानता हूँ। इन्फोग्राफिक जो आजकल नया एक सब्जेक्ट चला है, उसके हिसाब से अगर आप CV बनाएंगे तो एक आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। वो चीज़ कि मैं मदर लैंग्वेज जानता हूँ, वो जानता हूँ, ये तो है ही, मगर मैं चाहता हूँ कि और भी चीज़ें उसमें आप ऐड कर पाएँ, जो हम आपको बताएंगे CV राइटिंग के बारे में क्या होता है। मेरे पास भी CV आते हैं डिफरेंट बच्चों के, और मैं उसमें कैसे उसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं अपने आप के एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा जब हम CV राइटिंग आपको बताएंगे। तो इसके अलावा आप ये भी आप देखें कि जो आप सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का आगे 4-5 साल के बाद क्या वैल्यू है। तो एक मार्केट वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए अपने सब्जेक्ट का। देखिए कि एक साथी कह रहे हैं, सरताज अजीज़ कह रहे हैं कि लाइब्रेरी साइंस का वैल्यू क्या है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, लाइब्रेरी साइंस भी आम इन्हें दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मसला ये नहीं कि आप किस सब्जेक्ट में आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है कौन सा बुरा है, सब सब्जेक्ट्स अच्छे ही हैं, मतलब कोई बुरा नहीं है। बट उस सब्जेक्ट में आप कितने एक्सपर्ट बन जाते हैं ये वैल्यू रखता है कि आपको मतलब उस फील्ड में आगे जाने में कोई रोक नहीं सकता। ये डिपेंड करता है कि आप उस फील्ड में कितने एक्सपर्ट बन जाते हैं, आपके पास उस फील्ड के बारे में क्या नॉलेज हो, आपके पास उस फील्ड के बारे में मतलब क्या आइडियाज़ है, कैसे आप उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर आप लाइब्रेरी साइंस में तो लाइब्रेरी साइंस में क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी को हम लाइब्रेरी साइंस में यूज़ करें। अगर आप इस तरह का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आगे जाएंगे। जैसे सजा साहब कहते हैं कि PhD अपॉर्चुनिटीज़ नैनो फिज़िक्स में क्या है, ये तो एक इमर्जिंग फील्ड है। नैनो फिज़िक्स या नैनो टेक्नोलॉजी जो साइंस है, ये तो आजकल इसका बूम है। एक ज़माने में बायोटेक्नोलॉजी का बूम था, आज नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो साइंस या नैनो बायोटेक्नोलॉजी का बूम है। हर जगह नैनो की बातें चल रही हैं। तो ये एक अच्छा सब्जेक्ट है, आपका एक अच्छा सब्जेक्ट, आप अगर आप इसमें चाह रहे हैं तो बड़ा इसमें ऑप्ट है। बट ये है कि इस तरह के सब्जेक्ट्स अगर आप चाहते हैं कि कश्मीर यूनिवर्सिटी या IST में इसमें आपको जॉब मिले, फिर आप लेक्चरर बने, तो अभी तो 5-6 साल बल्कि 10 साल तक आप भूल जाए। कश्मीर में बातें बहुत देर तक पहुंचती हैं, जब तक दुनिया छोड़ देती हैं तब जाके कश्मीर में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है।
ये सिस्टम को मैं ब्लेम कर रहा हूँ, वहाँ के टीचिंग को, वहाँ के लोगों को ना मैं ब्लेम कर सकता हूँ, ना मेरा हक है, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से हूँ। बट सिस्टम हमारा ऐसा है कि जो सब्जेक्ट दूसरी जगहों पे ख़त्म हो जाता है, उसी सब्जेक्ट को फिर हम शुरू कर लेते हैं, जो कि हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम है। इन्हें हम कुछ भी कर सकते थे बट वो नहीं है। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है मलेशिया में, मैंने कहा था कि पोस्ट डॉक्टरेट की, ये तो मैंने बात अभी तक की, वो तो है कि आप 10+2 लेवल पे भी जा सकते हैं, आप ग्रेजुएशन लेवल पे भी जा सकते हैं, आप PhD पे जा सकते हैं। बट मेरी तरफ से सजेशन ये है कि 10+2 में आप मलेशिया ऑप्ट ना करें, क्योंकि ज़्यादा स्कॉलरशिप्स नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो वहाँ सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं उसी तरह का वैल्यू हमारे पास भी है। तो मास्टर या PhD लेवल पे नेचुरली आप जाना चाहते हैं, दैट इज़ गुड, आप जाइए, बहुत अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, स्कॉलरशिप के साथ जाइए। जहाँ तक ताल्लुक़ है पोस्ट डॉक्टरेट का, और पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप भी मिल जाती हैं। पोस्ट डॉक्टरेट का भी वही ऑप्शन है कि अगर आप डायरेक्टली आप काम करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, और बहुत अच्छे स्कॉलरशिप्स है, उसमें भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स है, उसमें भी प्राइवेट स्कॉलरशिप्स है, उसमें भी आप प्रोजेक्ट बेस्ड स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। और कुछ टाइम, मतलब 1 साल 2 साल पहले इसका थोड़ा सा कम हो गया था वैल्यू, बट फिर से जो महातिर की गवर्नमेंट आई है उसमें फिर से उन्होंने शुरुआत कर दी है। और जैसे कि कुछ साथी यहाँ पर, जैसे शारिक सोफ़ी कहते हैं कि PhD सऊदी अरबिया में क्या है, खैर वो सऊदी अरबिया का टॉपिक नहीं था। खैर आपने सवाल पूछा तो मैं बताऊं, सऊदी अरबिया में एडमिशन का प्रोसीजर पहले ही बयान हो चुका है, पहले इसमें हमने लेक्चर दे दिया है। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशंस ओपन हो जाते हैं साल में एक बार, और उस वक्त हम उसको मतलब डालते भी हैं यहाँ पर अपने गाइडेंस पे, जो कश्मीर गाइडेंस पेज है हमारा, उसके बाद अप्लाई कर लीजिए। बट जब भी आप फ़ॉरेन आने की, मतलब दिमाग में आपका है कि मैं फ़ॉरेन में आ जाऊँ, उस वक्त आपको याद रखना है कि आपको एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, आईलेट्स या टॉफल। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आईलेट्स कंसिडर करते हैं। आईलेट्स 2 साल के लिए वैलिड है। जब आप उसको, इसका स्कोर आपको मिल जाता है, अराउंड एटलीस्ट 6 आपका होना चाहिए। 5.5 भी किसी जगह माना जाता है, बट 6 इज़ बेटर। इफ़ यू हैव अ 6 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप एटलीस्ट 6 आपके पास हो, 2 साल तक वैलिड होता है। आज से ही आप आईलेट्स की प्रिपरेशन कीजिए, कोई तूफ़ानी सब्जेक्ट नहीं है, कोई तूफ़ान आप नहीं करेंगे, ये बहुत आसान है हासिल करना। इसके बारे में क्या रिक्वायरमेंट्स है, मैंने अभी कहा कि हम ऑफलाइन जब आएंगे, जब हम ऑन ग्राउंड आएंगे, हम इसके बारे में क्लासेस और कोर्सेज भी देंगे। और अगर आप खुद भी सर्च करेंगे गूगल में तो वो भी अवेलेबल है। कश्मीर गाइडेंस का मतलब ये भी है कि हम फ़िल्टर बेस्ड जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है उन्हीं को हम करें। हम ऐसे कोई नहीं कि जैसे आप गूगल में भी डालते हैं आपको हज़ारों स्कॉलरशिप्स मिलेंगे, बट हमारे पास जो स्कॉलरशिप या फेलोशिप्स हम डालते रहते हैं ये फ़िल्टर बेस्ड होते हैं, जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी होते हैं, आपके पॉसिबिलिटीज़ भी, आपके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने जस्ट 1 घंटा पहले 2 फीमेल कैंडिडेट्स जो फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल केमिस्ट्री किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी में फ़ीमेल को चाहिए। फ़ीमेल, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मेल सिर्फ प्रेफरेंस है, आजकल ऐसा नहीं कि फ़ीमेल भी है, हमारे पास फ़ीमेल का भी अपॉर्चुनिटी है। सो उस पोस्ट को जा सकते हैं, अगर कोई आपके वो है तो उसको आप इतला दे दें। और जिसका ईमेल मैंने दिया है वो मेरा दोस्त है, तो उसको आप डायरेक्टली ईमेल पहुंचा सकते हैं। तो ये ऐसे स्कॉलरशिप्स जो फ़िल्टर बेस्ड, जो हमें पता हो, जिसके बारे में हमें इतला है कि ये है वाकई कोर्स, सो यू शुड गो। इसी तरह कंप्यूटर साइंस पाकिस्तान में क्या सब्जेक्ट है, तो नेचुरली जिस तरह हर जगह सब्जेक्ट्स के वैल्यू और हर कंट्री में वैल्यू है, पाकिस्तान भी एक अच्छी जगह है PhD या मास्टर करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए। बट प्रोसीजर क्या है, कैसे जाएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जो लोकल लेवल पे भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी पड़ेगी, पॉलिटिकल इश्यूज़ और दूसरी चीज़ों को छोड़ के। बाकी कंट्री पढ़ने के लिहाज से उसमें कोई एतराज़ नहीं, हर एक कंट्री का अपना वैल्यू है। सो मलेशिया में आपको जो जॉब प्लस आपका एजुकेशन है वो उसके साथ साथ जो वहाँ की लाइफ है वो बड़ी ही अच्छी लाइफ है वहाँ पर। मैंने आपको कहा खाने पीने का कोई इशू नहीं है, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, खर्चा वहाँ पर ज़्यादा भी नहीं है, जो इंडियन खर्चा है वैसे ही खर्चा वहाँ है। कम्युनिटी इंडियन भी वहाँ है, तो खाने पीने का कोई इशू नहीं है। इसी तरह नॉर्मल वेदर है, थोड़ा सा गर्म रहता है बट उतना भी नहीं है कि आप बियरेबल ना हो। बाकी डेवलप्ड कंट्री है, बहुत ही अच्छे उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूनिवर्सिटी के अंदर भी, बाहर भी, रोड्स पे भी, आपके घर भी। तो एक अच्छा आप लाइफ स्टाइल वहाँ गुजार सकते हैं। वीज़ा का भी ज़्यादा इशू नहीं है, आराम से फैमिली को ला सकते हैं, फैमिली वीज़ा पे आ सकते हैं। और घूमने की अच्छी जगह है, तो आप बहुत सारी जगहें वहाँ पर घूम सकते हैं। मुस्लिम कंट्री है तो उसमें बहुत सारे और भी फ़ायदे हैं।
मैं जानता हूँ बहुत सारे जो हमारी सिस्टर्स वहाँ गई थी एजुकेशन हासिल करने के लिए या जॉब के लिए, उन्होंने जॉब किया और अच्छी तरह से अपने शर्म हया को बरकरार रखते हुए उन्होंने तमाम चीज़ें हासिल की हैं। तो एक रेकमेंडेड कंट्री है जिसको मैंने अभी कहा कि मैं थम्स अप करता हूँ। अगर आप चाहते हैं तुर्की के बाद एजुकेशन हासिल करना तो उसमें आप कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई सवालात है और मज़ीद सवालात तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालात का इंतज़ार कर रहा हूँ। You should have, if you have queries regarding the admissions or the procedures in Malaysia, you should come and you should directly ask me the questions. I am open for any question, or if something is missing, so you can remind me about the things. Otherwise, all other links related to the admission procedure, how to get the scholarships, as well as what the scholarships are available in Malaysia. So I shall provide those links and those scholarship details, inshallah, in the coming posts. And this is what we are thinking about Kashmir Guidance, and this is what we can provide from our services to the students back at home. This is not just a single or one man's show. We have a group, and as a co-founder of this group, I am also inviting the people back at home to join this group. A political group without any affiliation of any political party or something like that. So this is a philanthropic activity. We feel that to help and to provide the information about scholarships, guidance based information, as well as opportunities, as well as training the students to go abroad and achieve what they can achieve and what they cannot find back at home. For that, we feel that this is a zakatul ilm, and we are providing the zakat for that what we have already given. So सईद कुमैल लिखते हैं कि प्रोसीजर क्या है MBA का मलेशिया में। सिंपली GMAT की नेसेसरी नहीं है वहाँ पर, ये चीज़ें हम इंडिया में ही पाते हैं. सो इन मलेशिया यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर द इफ़ यू हैव अ BBA or we can say the bachelor in this business administration, you can directly apply for the MBA in Malaysia. And Malaysia is providing this management courses not only in the general streams. You can go to the different levels of MBA positions in Malaysia. So another question from Sartaj Aziz asking the admission season in Malaysia. Mostly admission season Malaysia में, so every university is opening the admission for PhD twice a year. हर साल में 2 बार इसका एडमिशन ओपन हो जाता है, और मोस्टली ये एडमिशन ओपन होता है एक तो अगस्त में क्योंकि अगस्त से शुरू हो जाता है, सेकंड इन फरवरी. सो अगस्त और फरवरी इनके बीच में एक महीने के गैप में दे आर ओपनिंग द पोजीशंस फॉर मास्टर्स एज वेल एज PhD. बट स्कॉलरशिप के लिए जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है इस ओपन वंस ए ईयर, जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है वो भी ओपन इन ईयर. बट जो प्रोजेक्ट बेस्ड स्कॉलरशिप है या जो यूनिवर्सिटीज़ में सुपरवाइजर्स को जो प्रोजेक्ट मिलते हैं, दिस इज़ ओपन थ्रू आउट द ईयर. जब भी स्कॉलरशिप को ओपन है, आपको क्या करना है कि आप यू शुड सर्च फॉर द प्रोफेसर्स very much related to your subject and directly write to them. And some people said that we are writing to them that we are not getting, we are not receiving back any information. For them, I must tell you that you have to keep patience. Sometimes the scholar or the professor is busy in different activities and you think that he is not responding, but you need to check whether the link of his email ID is given is correct, and whatever you have sent the email to him is correct. If everything is correct, you can remind him twice, 3 times or 4 times. If he is not responding or she is not responding, then you can opt for the other things. Sometimes the professor is traveling, sometimes he is not available, sometimes he has not a scholarship, he cannot provide you all these things. So we have different things. So Umar Farooq is asking about the infrastructure companies Malaysia accept expat as employees. जहाँ तक मैं ये समझता हूँ ये सवाल, which infrastructure companies in Malaysia accept, okay, so he says that suppose for example expat, the outsider wants to come to Malaysia for the work. I suppose in Malaysia it's a fast progressing country where they have to build the new infrastructure every time. So they have a concept of 2020, but they have now extended 2025. So the infrastructure is going out very well, and they have a lot of amount to develop the infrastructure. So if you are
you want to be the employee in that in any of the companies, you have the opportunity. But for that you have to contact the particular agency. There are two types of agency. Don't go with the fake agencies. First of all, I have found some people who got the letter of acceptance, but rather when they inquired about them and they found this a fake. So fake thing is very common in every part of the globe. Don't be overlured or something lured by these companies. So you have to be cautious while getting the acceptance from all these companies. So double check with the people. Sometimes you can put these words to the Google, you can find that these were the, or sometimes if you don't find anyone, you can contact me directly. I will tell you whether this is there or not. So Nasir Saab is writing about opportunities for MS MTech program in mechanical engineering, with vast opportunities there. If you want to see in Malaysia, if you want to go for the job at MS and MTech level, you can find. But if you want to go to PhD, you have a this a blue ocean, a green field is there opening for you. I know many people who are working in MS and MTech after they are doing the PhD in mechanical engineering. In fact, in UPM, University Putra, Malaysia, they have a full engineering faculty, and I know many people. If you are interested there, I can help you in getting some contact to work in the mechanical field. There is a very green scope for it. Madina Ayub is writing about the opportunity for MS program in biotechnology. Yes, it's a very vast, huge. Sometimes they have collaboration with the Japanese universities. I know in UPM, biotechnology division is very fastly, actively working in the latest fields of biotechnology, including the stem cell technology and nanobiotechnology. I think it's a lot of opportunities available. If you are not getting the direct scholarship from the government, you can directly write. You can open the websites for the particular this university, open their biotechnology division, check the profile of the professor and write to them directly. Inshallah, you will get some chances. And in MS program, yes, they have a very great program, not only there in University of Malaya. This is under 100 in the QS ranking. You should opt for the Malaysia. I am giving big thumbs up for opting Malaysia as a country for education, for job and for other things, because it's a economically strong country as well as politically very neutral and very safe if you want to go outside and work as well as to study. So if you have any other question on this page regarding the this Malaysian opportunities, so regarding the what I have spoken so far, it was an information, general information. Okay, now another question is coming from Abid. He is saying, I want to take admission for PhD in history, please. Yes, why not? I told you that, you see, not only the subjects related to science are important. If you take the history, we require historians also. We require the people who are very much expert in history. I am giving you a very big thumbs up to go ahead and provide, get the opportunities. Particularly world history is a big subject. See, I myself wish to be the student of some humanitarian subject, because you will find a lot of opportunities. And nowadays the subject like history is having a very huge impact on the society. So please go ahead with the history. Don't feel that only science subjects is having the importance. You can also find a very good job and very good opportunity in history, but depends upon how are you moving ahead and how you are finding your way in a heat of people, in a very vast majority of the people. You have to find your own path. Don't go to the beaten tracks, because you cannot find the much opportunities there. If you want to be a historian or go PhD in history, you should be having some extra plus, something extra information or something extra thing. That extra thing you need to explore. Nasir Saab, thank you. Yes, surely I will provide you my email. My email is kur.hakeem @gmail.com. I will write also the link here, kur.hakeem@gmail.com. You can send me the information if you have some clarification. But to all, I must tell you that please give me some time. If you don't find me the direct replies very fast, because sometimes due to different I'm also working here, so our family issues, so I cannot give you the response on that particular situation or time, but bear me some time so that I will. But surely inshallah, if I get the email,
I shall finally send you the response with all the clarifications. So PhD in economics, one of the wonderful subjects I must recommend. You should go to take the economics as a subject, but please don't be just another economist. You should be having to see what the things you have special in the economics, particularly in the World Economics Forum. They are now looking for the experts who are in the economic field, and if you go for the PhD in economics, it's a big thumbs up from my side. One of the beautiful subjects, one of the subjects which is having the very deep rooted job opportunities as well as impact on the society. So to Shahid, this is from my side. You should go, definitely. Don't limit yourself to the Malaysia only. The full world is a blue ocean for you. Please go deep and dug deep in the world. I think economy is one of the good subjects, just like history and political science, if you are from the non-science background, so that you can get the job easily and you can have an impact, very huge impact on the society. So friends, I'm expecting any other questions, so you can come to me. And to all friends, I must tell you that Kashmir Guidance is your forum. So I'm suggesting to help us in becoming the district coordinators in Kashmir Valley, in Ladakh, as well as in Jammu, so that we shall come there and we shall, inshallah Aziz, start the on-ground programs there. Wa alaikum assalam to Sadat Ayub and Zakir Nabi. Junaid is asking procedure for admission in MSc nursing outside India. The procedure for MSc of any courses is the similar one. For nursing, might be they require the BS in nursing with some training, and finally they shall get MSc nursing. It's one of the good subjects. And nursing is only the job throughout the world. You can anytime, there is no dearth of the jobs available for nursing. The procedure is similar. For master to a foreign country, you should have IELTS, you should have BSc nursing with some experience. Okay, we shall get some people, some experts. Already we have a line of very huge experts from different fields of study. They will come and they will give the this talks on different topics. You shall stay connected with our Facebook page. And if you have some guy, suppose you have some, you want to introduce someone do you think that they can come and they will also help our students, we can also suggest, we can directly contact with them. Because I told you, this is a general form. We are not asking any money for our guidance services. This is just a sincere trial. This is just a sincere our this desire, so that if the people who came by luck or by chance, the mercies of Allah subhanahu wa ta'ala, they came outside for work and got some opportunities, we are thinking that we should be the guidance force or the torch bearers for our younger generations back home. They should also come outside and they should see the opportunities. I told you there are challenges also. So Jazakallah khair also to Abu Naif. May Allah bless you all. So this is, if we don't have any other questions, so I must tell you that thank you very much for bearing around. Now it's going to be half an hour plus 45 minutes for this talk. So if you have any other question, you can put the link here or you can ask me the question, and I hope that I have given much of the information about the Malaysia, the scholarships available in Malaysia, as well as the positions available there. But this is one suggestion, that whenever we are providing some link or something to the paste on our Facebook page, most of the people, they, without opening the link, they just send our message, sir, what is the eligibility criteria, how to go, this and that thing. That's I think is not a good approach. You should go first of all the link and check everything at your level. And if you are not getting something very serious thing, that time you can ask us. We are willing to help our young kids, our young chaps. But if you are not opening it and you are asking the questions, this becomes something, we don't support the spoon feeding. We never support the spoon feeding. In fact, we discourage it. If somebody is asking the silly questions without opening the link, we don't even this is our policy. We are not giving even the reply to the person.
PhD in zoology, just like the subjects in botany and other subjects, I must tell you this is also the green field. But look, what type of zoology you are thinking of. If see, the problem with the Kashmir University and in the the system in Indian system, not only the Kashmir University, that we are thinking a big thing like PhD zoology, PhD botany. But what is in zoology? What is in botany? What is the specificity? What will be the future of zoology after 5 years? So we have to think about all these issues if you are going with the zoology. So what type of zoology? Which field of zoology? What is the latent trends in zoology? And the university which you are opting for, the professor which you are thinking about, look about his publications. Naturally you can go about. And PhD zoology, like all the PhDs, they have a very good scope. I told you that no subject is, not a single subject is a waste subject. Every subject has its importance, and if you excel in your field of study, you can go ahead. Yes, it's not only PhD and master. At UG level there are different courses, but at UG level the opportunities are very less and the competition is very high. But I'm not telling you that there is nothing about UG level, but what I'm saying is that if you don't get the opportunities at UG level, you can study UG at your home place in Kashmir or in India, any other place in India, but you have to prepare yourself. You have to prepare the for the master or for PhD to opt for the universities outside the country, because the opportunities and the scholarships are more, and the approach after you get the PhD or the master outside India, you will have a different thing altogether than if you sit in the India. The problem with the Indian system is that we are still having the same type of issues, same type of information what we have. The Indian system is not going to be changed what the other world is going very fast. So that change we need to be put in the Indian system. That requires time. This is the most important factor which is driving the people to go outside India and work. Yes, naturally about postdoctoral in ecology, environment science in Gulf and other countries. In Gulf and other countries, the Gulf is facing some issues nowadays, but the positions are available here again. In Malaysia, there is a lot of positions available for environmental science and for other things. Javed Saab, yes, I must tell you that you have a very green field open. I know you, and I have seen your publications. Why you stay in at your place if you have opportunities to go abroad? If you require my recommendation, anything, I shall be very much helpful, and I shall be very much happy to help you. You have a bright future, inshallah. Apply there. Don't just opt for the Gulf only. Gulf is having a lot of opportunities, but let us go beyond the Gulf. The world is beyond the Gulf, and the opportunities are very much available throughout the world in your subjects particularly. Very nice subject. In fact, I am a plant science person, but most of the work doing with the plant science related to the environmental science, because environmental science is the most fascinating subjects in the world nowadays. In our subject like biological science, it is very important one. Junaid Saab, about the PhD physics in Saudi Arabia. Yes, we have. Okay, oh sorry, not PhD physics, physical education. Not much opportunities in Saudi Arabia. I think for physical education in Saudi Arabia, I'm not recommending you should go for the other countries. I don't feel that we do have much physical education positions or procedures, positions and opportunities available in Saudi Arabia. So I think this is the thing. Okay, okay. Sadat Ayub about NEET. Our expert is coming about the NEET. He will give you full details about the NEET program. I think we require a full program about NEET, which subjects you need to opt and what you should do. I think this lecture is not meant for the NEET, so sorry I cannot respond you now. So okay, Sharik Sofi is writing about publishing a research paper during our master's years. See, TOEFL or IELTS is basically eligibility to enter into any university, but research paper having during the master's is a big positive point, plus point. If you have one, just one, I think it's sufficient that you will get the position from PhD. So it is necessary you should have IELTS and TOEFL.
because this is their eligibility criteria. You cannot pass the something without the eligibility. Eligibility may be less, but eligibility is eligibility. You have to get it. After that, it's your talent. So eligibility you have to follow, you have to get, and don't feel that clearing IELTS and TOEFL is difficult. It's not difficult. It's very easy. You can get the teacher, any research scholar or any professor can take you on the basis of your research paper. But to enter into the university, you require to be the TOEFL or IELTS. So better to get the position, this one among the this TOEFL or IELTS. Better is to get the IELTS, and naturally the research papers will help you. Anyways, friends, thank you very much for your time. It's the Salah time in Saudi Arabia. I'm just hearing the adhan of Maghrib. So thank you very much. It was a very nice time to discuss the things, and I hope I have given the response to all the friends there. So I'm waiting for the friends who want to be the who want to be a sort of a volunteer fellows in different districts of Kashmir, so that we shall have a coordination in every district, in Jammu, in Ladakh, as well as in Kashmir, so that when the friends from our friends from Kashmir Guidance, they went back for their holidays and vacations, they can contact them and they can have different lectures on different topics, including how to get IELTS and how to get positions, how to write research paper, how to write other things. Even in fact, inshallah, I am also planning to come, and I shall be there in in Kashmir after Eid, inshallah. So I shall be there for the couple of months. I am free also. If you want to organize some lecture in your college or university, it shall be my pleasure on different topics to do there. So thank you very much. May Allah bless you all. Jazakallah khair. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.